Hello everyone, my name is Tushar Tuvar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to take lecture of Structure Analysis 2, subject code 3150614, offered in semester 5th. Today cover in this lecture topic slope deflection method, unit 2, structure analysis to slope deflection method. Slope deflection method objective: to obtain slope and deflection of beam and frame structure using slope deflection method. Next, in the slope deflection method, the relation is established between moment at the end of the member and the corresponding rotation and displacement. Second point, the slope deflection method can be used to analyze statically determinate and indeterminate beam or frame. In this method, it is assumed that all deformation are due to bending only. In other words, deformation due to axial force are neglected. In the force method of analysis, comparatively equations are right in terms of unknown reaction. Second point, it is must to be noted that all the unknown reactions appear in each of the compatibility equation, making it difficult to solve resulting equation. The slope deflection method was originally developed by Ernst Mandel and Otto Mohr for computing secondary stress in stress. Next point. The method as used today was present by G.M. Mania in 1950 from analyzing rigid joint structure. Difference between force and displacement method. First, force method and displacement method. The force method है उसमें फोर टाइप की मेथड है और डिस्प्लेसमेंट में भी फोर टाइप की मेथड है. तो फर्स्ट मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, थियरी ऑफ लीस्ट वर्क, कॉलम एनालॉजी मेथड, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स मेथड. डिस्प्लेसमेंट मेथड जो स्लोप डिफ्लेक्शन हमें स्लोप डिफ्लेक्शन जो हमें पढ़ना है भाई वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है. मोमेंट एरिया पढ़ना है वो भी डिस्प्लेसमेंट मेथड है. कानिज मेथड और डिस्प्लेसमेंटिक मेथड. फोर्स मेथड, टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेंसी, स्टैटिक indeterminacy, types of indeterminacy, kinetic indeterminacy, governing equation, compatibility equation, governing equation, equilibrium equation. Force displacement relation is flexible matrix, force displacement relation is stiffness matrix. एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था है, पूछ सकते हैं. In force method, the unknown redundant force
are determined first by solving the structure compatibility equation, then other response characteristic of structure are evaluated by equilibrium equation or superposition. An alternative approach can be used analyzing term the displacement or stiffness method. In displacement method, the unknown displacement are determined first by solving structural equilibrium equation, then other response characteristic evaluated through the compatibility consideration and member force deformation relationship. The displacement method includes slope deflection method and moment area method. Moment area method और slope deflection method दोनों displacement method है. Next, when a continuous beam or frame is subjected to external load, internal moment generally develop at end of its individual member. The slope deflection equation relates the moment of the ends of the member to the rotation and displacement of its end and the external load applied to the member. This method is applicable to all types of statically indeterminate beam frame, and in this method we solve for unknown joint rotation which are expressed in terms the applied load and the bending moment. Deflection due to shear and axial stress are not considering at the effect are small. Indeterminate structure. The structure which cannot be analyzed by the equation of statically equilibrium along R is called indeterminate structure. Assumption in this slope deflection method, all joints of the frame are rigid. Distortion due to axial and shear stress being very small are neglected. Application of slope deflection method. Three types of application used. Continuous beam frame with outside sway, frame with side sway. तो थ्री टाइप्स के एग्जांपल इसमें रहेंगे, कंटिन्यूस बीम, फ्रेम और साइड से. साइन कन्वेंशन. फर्स्ट रोटेशन मतलब थीटा. स्लोप तो यहाँ पे फिक्स बीम दे रखा है और ए पे जो मूवमेंट लग रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है और बी पे जो मूवमेंट लग रही है वो क्लॉकवाइज है. तो क्लॉकवाइज रोटेशन आर कंसिडरिंग एज पॉजिटिव and anti-clockwise rotation are considered as negative. जो clockwise डायरेक्शन में रोटेशन होता है तो हम पॉजिटिव लेंगे थीटा का, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है तो हम नेगेटिव लेंगे. फिर आएगा एंड मोमेंट. सपोर्ट मोमेंट उसको बोलते हैं और एंड मोमेंट. तो ठीक है, फर्स्ट फिगर है वो एंड मोमेंट की है, सॉरी, और सेकंड फिगर है वो रोटेशन की. क्लॉकवाइज रोटेशन
clockwise end moment are considering as positive or anti-clockwise moment are considering as negative। तो फर्स्ट रोटेशन लिखा है उसकी फिगर यहाँ पे थीटा ए बी और थीटा बी, थीटा ए और थीटा बी सेकंड दे रखा है, मिस्टेक हो गया है यार। सेकंड है एंड मोमेंट, उसकी फिगर फर्स्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंकिंग सेटलमेंट। साइन कन्वेंशन में सिंकिंग सेटलमेंट, जो लेफ्ट हैंड सेटलमेंट होता है ए और बी है, तो राइट साइड सेटलमेंट फर्स्ट फिगर में होता है, ए और बी में सेकंड फिगर में लेफ्ट हैंड सेटलमेंट होता है। राइट साइड सेटलमेंट हो तो हम पॉजिटिव लेंगे डेल्टा, और लेफ्ट साइड सेटलमेंट हो तो हम डेल्टा लेंगे नेगेटिव। तो सेटलमेंट विल बी टेक एज पॉजिटिव if it is rotate the beam wall in the clockwise direction। Second, the settlement will be take negative if the rotate the beam as a whole in the anti-clockwise direction। तो राइट साइड सेटलमेंट होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट साइड सेटलमेंट होगा तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, most important point in this chapter, slope deflection method and moment distribution method। fix and moment FEM। तो फर्स्ट बीम दे रखा है फिक्स एंड विथ सेंटर पॉइंट लोड P, तो फिक्स एंड मोमेंट होगी एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस पी एल अपॉन 8, एम एफ बी ए इज इक्वल टू प्लस पी एल अपॉन 8। फिक्स एंड बीम विथ एसेंट्रिक लोड, तो मोमेंट ए पे होगी पी बी स्क्वायर ए अपॉन एल स्क्वायर, पी बी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। थर्ड, दोनों साइड से लोड दे रखा है फिक्स एंड मोमेंट पे, तो एम एफ ए बी पे मोमेंट होगी माइनस अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा पी इंटू एल, और एक एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे प्लस अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा पी इंटू एल। नेक्स्ट, फिक्स बीम विथ यू डी एल, तो एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12, एम एफ बी ए इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। फिक्स एंड विथ हाफ यू डी एल, तो एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस 11 डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 192, एम एफ बी ए इज इक्वल टू प्लस 5 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 192। और नेक्स्ट, यू डी एल विथ इंक्लाइन लोड और यू डी एल दोनों दे रखा है, एंड पे इंक्लाइन लोड दे रखा है ए पे, और डब्ल्यू यू डी एल दे रखा है। तो एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाय 12 एल ब्रैकेट में एल क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर एल प्लस ए क्यूब, एम एफ बी ए इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई 12 एल ब्रैकेट में एल क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर एल प्लस ए क्यूब। Fixed beam with UVL uniformly varying load, तो ए एंड और बी एंड पे मोमेंट मिलती है एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस 20 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20, सॉरी माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20,
और यहाँ पे एम बी ए पे मोमेंट मिलती है एम एफ बी ए इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30। फिक्स बीम विथ सेंटर यू एल, तो फिर मोमेंट में भी मिलेगी एम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस 5 WL स्क्वायर बाई 96, एम एफ बी ए 5 WL स्क्वायर बाई 96। नेक्स्ट फिक्स बीम विथ यू वी एल एंड यू एल, तो एम एफ ए बी माइनस 70 WL स्क्वायर बाई 384, एम एफ बी ए इज इक्वल टू प्लस एम एफ बी ए प्लस 70 WL स्क्वायर बाई 384। ड्यू टू थीटा रोटेशन एट एयर, तो एम एफ ए बी प्लस 4 थीटा एल, एम एफ बी ए प्लस 2 थीटा अपॉन एल, जो रोटेशन दे रखा है कोई पे वन एंड पे। तो डिफ्लेक्शन दे रखा है तो -6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, -6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। जो एसेंट्रिक मोमेंट दे रखा है तो एम बी डिवाइड बाई एल स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस ए माइनस बी, एम बी एम एफ बी ए इज इक्वल टू प्लस एम ए डिवाइड बाई एल स्क्वायर ब्रैकेट में 2b माइनस ए। जनरल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, कंटिन्यूस बीम दे रखा है ए बी सी डी, तो फर्स्ट हम ए बी की बात करेंगे, फिर बी सी की बात करेंगे, फिर सी डी की बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ए बी एग्जाम्पल के तौर से लिया है। तो जनरल स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट पोर्शन ए बी है तो एम ए बी इज इक्वल टू फिक्स्ड मोमेंट ए बी एम एफ ए बी, एम फॉर मोमेंट, एफ फॉर फिक्स और ए बी पॉइंट, प्लस 2EI अपॉन एल ब्रैकेट में जो एम ए बी में ए फर्स्ट रहता है तो हम 2 थीटा ए लिखेंगे प्लस थीटा बी -3 डेल्टा अपॉन एल। और सेकंड बी ए पे बात करते हैं तो फिक्स्ड मोमेंट बी ए की एम एफ बी ए प्लस 2EI अपॉन एल ब्रैकेट में जो एम एफ एम बी ए तो फर्स्ट बी है तो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए -3 डेल्टा अपॉन एल, एम एफ बी ए एम एफ ए बी एम एफ बी ए फिक्स एंड मोमेंट एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ड्यू टू द गिवन लोडिंग, थीटा ए थीटा बी slope at A and B respectively, delta sinking of support A with respect to B। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, जो मेंबर जितना रहेंगे ए बी बी ए बी सी सी डी, जो कंटिन्यूस बीम हमारा है तो उसमें जितनी हम फिक्सन मोमेंट फाइंड करेंगे उतने ही स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन for various continuous beam are given below. At
any joint algebraic sum of moment must be equal to 0। यहाँ पे फर्स्ट ए फिक्स दे रखा है और सी फिक्स दे रखा है और सेंटर में बी पॉइंट सिंपल है। तो जो एंड फिक्स है वहाँ थीटा स्लोप 0 रहता है। जो एंड फिक्स है वहाँ थीटा 0 रहता है। वही बात बी की, तो बी पे थीटा हमें मिलेगा तो हम लिखेंगे अननोन थीटा बी। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन जॉइंट, जहाँ जॉइंट है ए बी और सी, तो बी जॉइंट है तो बी से हम ए तक जाएंगे और बी से हम सी, बी से ए और बी से सी। तो हम लिखेंगे एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। सेकंड की बात करें तो ए एंड फिक्स है, बी एंड सिंपल है और सी एंड सिंपल है। मैंने बोला कि ए जो एंड फिक्स रहता है वहाँ पे स्लोप 0 रहता है, तो हमें दो अननोन मिलेंगे, थीटा बी और थीटा सी। तो यहाँ हमें दो इक्वेशन भी मिलेंगे, बी ए एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0 और एम सी बी इज इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे तीनों सपोर्ट जो है वो सिंपल है, ए बी और सी। तो मैंने बोला कि फिक्स एंड रहता है वहाँ स्लोप 0 रहता है, सिंपल रहता है वहाँ स्लोप हमें मिलता है। तो हमें अननोन कितने मिलेंगे 3, थीटा ए, थीटा बी और थीटा सी। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने मिलेंगे, फर्स्ट हम जॉइंट से हम इक्विलिब्रियम बनाएंगे, तो एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। फिर हम ए एंड से जाएंगे, एम ए बी इज इक्वल टू 0। फिर हम बी एंड पे सी एंड पे जाएंगे, एम सी बी इज इक्वल टू 0। जितने अननोन है उतने इक्वेशन मिलेंगे। नेक्स्ट, ए एंड है वो फिक्स, बी एंड है सिंपल, सी एंड है सिंपल और डी एंड है फिक्स। तो फिक्स ए और डी फिक्स है और दो सिंपल है, तो सिंपल एंड पे रोटेशन होगा, थीटा मिलेगा। तो अननोन कितना रहेगा, थीटा बी और थीटा सी। दो इक्वेशन मिलेंगे जॉइंट बी और जॉइंट सी से। तो जॉइंट बी से हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। जॉइंट सी की बात करेंगे, एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं ए बी सी डी, ऑल पॉइंट सिंपली सपोर्टेड। तो कितने अननोन मिलेंगे, ए पे भी मिलेगा, बी पे भी मिलेगा, सी पे और डी पे। तो अननोन कितना हो गया, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी। जितने अननोन है उतना इक्वेशन मिलना चाहिए। फर्स्ट हम बात करेंगे जॉइंट बी की, तो बी से हम एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम। सेकेंड इक्वेशन एम सी बी प्लस एम सी डी, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड हम जाएंगे ए एंड एम ए बी इज इक्वल टू 0 और एम डी सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर वेरियस सिंपली सपोर्टेड बीम आर गिवन बिलो। फर्स्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड, सेंटर पॉइंट लोड। तो दोनों सपोर्ट पे रिएक्शन कितना मिलेगा, W/2 और मैक्सिमम मोमेंट क्या मिलेंगी, तो कि सेंटर पे कितनी, तो कि MC इज इक्वल टू WL/4। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड सेंटर, मैक्सिमम मोमेंट MC इज इक्वल टू WL/4। सेकंड, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL W किलो न्यूटन पर मीटर और एंटायर स्पान, रिएक्शन दोनों सपोर्ट पे WL/2। मैक्सिमम मोमेंट कहाँ मिलेगी, सेंटर में।
कितनी, एम सी इज इक्वल टू WL²/8। जब एसेंट्रिक लोड दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एसेंट्रिक लोड W, तो जहाँ लोड दे रखा है वहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट A से WAB/L। और जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दे रखा है तब A पे मोमेंट रिएक्शन WL/6 और WL/3, तो मैक्सिमम मोमेंट WL²/9√3। पोजीशन फ्रॉम X 0.57 L, जो डिस्टेंस की बात की है यहाँ पे। नेक्स्ट, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप लिखा है फिक्स एंड मोमेंट। जो कोई भी बीम दे रखा है, हम इंडिविजुअल मेंबर, मतलब कंटिन्यूस बीम दे रखा है ABCD, तो हम AB मेंबर के फिक्स एंड मोमेंट फाइंड करेंगे, BA की फाइंड करेंगे, BC, CB, CD और DC सबकी फिक्स एंड मोमेंट फाइंड करेंगे। पॉइंट लोड सेंटर में रहेगा तो फिक्स एंड मोमेंट क्या रहेगी, -WL/8 + WL/8। UDL तो -WL²/12 + WL²/12। ठीक है, तो एक फर्स्ट वर्ड हो गया। सेकंड, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। जितने फिक्स एंड मोमेंट हमने फाइंड आउट किया उतना ही स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। MAB, MBA, MBC, MCB, MCD और MDC। फिर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन की। इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो हमें गिवन फिगर, कंटिन्यूस बीम दे रखा है, ऑल सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है, तो 4 अननोन मिलेंगे, θA, θB, θC और θD। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने मिलेंगे, 4, दोनों जॉइंट पे B और C। तो MBA + MBC = 0, MCB + MCD = 0, MAB = 0, MDC = 0। 4 अननोन, 4 इक्वेशन। फिर फाइनल मोमेंट जो हमें थीटा मिलेगा वो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल मोमेंट मिल जाएगी। फिर बॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो फाइनल मोमेंट मिले है उसे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और फाइनल मोमेंट जो है वो बीम पे रखेंगे और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये डिजाइन प्रोसीजर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के स्टेप। ठीक है, ओके, थैंक यू।